results, teachers, seniors, and my dear friends. As we all know that today we are gathered here to give farewell to our seniors. It's my pleasure that I am here to welcome you all on the behalf of my class. Having brilliant seniors is always a motivating factor, and we are lucky that we have you as our seniors. I would like to congratulate all our seniors for their nice journey in this school. You must have good memories of this school. Now you are going away to pursue your dream career. We are happy for you. But somewhere we have the pressure to be as good as you were. We all juniors think that you seniors have set a high benchmark of excellence, and to reach that point we need to work hard. A farewell is a celebration to celebrate your success and wish you well. As students, you all made our school proud, and now it's our responsibility to carry forward the legacy. We learned many important things from our seniors, including the art of making healthy interaction with everyone in the school. We will make sure to have healthy relationships with our juniors and follow the instructions of teachers. At last, to conclude this speech, I would like to say to our seniors that our wishes are always with you all. We wish you well for your successful future. Thank you and have a nice day. Speech. Now it's time to enjoy some dance performance. So I would like to request Anushka Yakude and her group to come forward on the stage for the dance performance. बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे घूम लगाई येलो येलो कंट्रोल
you have to maintain the decorum, right? You all are in class, so kindly see to it the decorum of today is being maintained. पुरानी आदत है ना? आप याद करिए वो 12 साल पीछे जाइए फ्लैशबैक में, जब आप रोते हुए मम्मी का हाथ पकड़कर नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, बिकॉज पता नहीं कहाँ कैसे कैसे टीचर्स हैं, सारा दिन वही टीचर्स बन के पढ़ाते रहते हैं, तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है ना? याद आया कुछ? बहुत पुरानी बात है, 12 साल पुरानी बात है, पर हम टीचर्स के लिए वो एक चैलेंज था। जब हमने आपको वेलकम किया स्कूल में, रेडीनेस प्रोग्राम पढ़ाया, अ आ क ख ग ABCD लिखना पढ़ना सिखाया। याद करिए, अगर आपने वो ABCD तब नहीं पढ़ा होता तो क्या आज आप जिस बोर्ड के लिए जा रहे हैं दे पाते? नहीं ना। बीच में कुछ ऐसा वक्त आता है जब आप अपने प्राइमरी टीचर्स को सोचते हैं ये तो बस हमारे नैपीज और बदलने के लिए ही हैं, बाकी ये किसी काम के नहीं है। बट ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने आपका बेस बनाया था। दे आर द वंस, दे हैव डन एवरीथिंग फॉर यू अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स इन द स्कूल एनवायरनमेंट। सो it is a matter of fact, I really feel proud of those primary teachers जिन्होंने आपको ग्रूम किया, और ग्रूम करने के बाद धीरे धीरे in every stage you came up to class 12 and now today you are about to venture a new world, new challenges, new things in life will be coming across. So with this I would like to say that there will be many things, but today's day will always be memorable to all of you. And someday, maybe after 10 years, अगर उतना WhatsApp काफ़ी एवर रहा, तो आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढेंगे, whereas केवी चाणक्य एलुमनीज निकालिए उनको और तारीफ करते हैं कि अच्छा हमारे वो टीचर थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे, हमें ऐसा जाना गया था, and all those things. Right now you won't understand, but maybe after 5 years, 10 years, जब आप थोड़े mature हो जाएंगे, तब आप जरूर याद करेंगे। An important chapter of your life is coming to an end. However, there is a whole new chapter of life awaiting you, full of challenges, full of dreams. Let's see how successful you all will be. कोई किताब ऐसी मिलती जिस पर दिल लुटा देते, कोई किताब ऐसी मिलती जिस पर दिल लुटा देते। हर विषय ने दिमाग खराब किया है, किसी एक को तो निपटा देते, है ना? एक चैप्टर ऐसा था, एक सब्जेक्ट ऐसा था जैसे पसंद नहीं था। अब सिलेबस देखकर ये सोचते हैं कि एक महीना, अब सिलेबस देखकर ये सोचते हैं कि एक महीना और होता तो दुनिया को हिलाकर रख देते। With this, I wish you all the best for the forthcoming examination. Wholeheartedly, from the bottom of my heart and my teachers, all of us, so that you do well and this result मिलेगा तो केवी चाणक्य should stand first. Thank you. Good wishes. Mrs. Sima Surulia ma'am, Aichan ma'am, and all my loving colleagues and all my dear students. Now, finally the day has come. I think the most awaited day for this people. And as far as I know, people have been preparing for this day for a long period of time. And really from the bottom of my heart, I would like to say two things for this batch. I was a class teacher for almost 5 years, for 6 to 10 class. And really we had a very wonderful time together. We had a lot of problems. We had faced all the problems. We have overcome all the problems together. Really, all the students supported me a lot. We have taught them so many good things, academic, moral values, many things. But personally, I want to say that I have learned so many good things from my students. And really, I would like to say a few things for this batch. Really, they really deserve all our admirations, lots of love and blessing from all the teachers. We faced so many problems when we were there from 6 to 10 class. Now,
you are stepping into the new world, the world of new hopes, new challenges. I really, from all the entire staff, I wish you all the best to face the new challenges, new problems. And we have taught you so many wonderful things in the school, but that is what when you apply the values in your life and future, then it is worth. And we had really a wonderful time together. And when you are stepping into the new world, really you deserve, and I hope I wish that you will have all the best that really you deserve in your life. You will have money, you will have fame, you will have good social status. But besides that, personally, when I was your class teacher, when I entered the class, I used to say or tell you the wonderful story with moral values. Today also I would like to say that really you will have all the achievements, all the best things in your life. But besides that, I want all of you to be a very good person, responsible citizen, that is what. And at the end, I caught the very wonderful line of Albert Einstein that inspired me a lot, and that is, don't really try to be the person of success, try to be the person of value. And really I would like to thank all my loving dear students. Lastly, I would like to end my speech with beautiful line of the song that I love the most, one of my favorite songs. वक्त की साख से लम्हा गिरा नहीं, वो दास्तां नहीं, लम्हा यही नहीं, थोड़ा सा सके, थोड़ा सा लगे, कभी भी जाने वाला है, वो आने वाला पल, जाने वाला है, हो सके तो इसे जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है, वो आने वाला पल, जाने वाला है. Wish you all the best from all the entire staff of the forthcoming exam and your future ahead. Thank you so much. शिक्षकगण और फिर प्रिय बच्चों, कोविड के 2 साल के बाद क्लास संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ी छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं ईश्वर से एक कामना करती हूँ, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको सक्सेस मिले. और सिर्फ इसका एक मूल मंत्र है मेहनत करना. 90% आपकी मेहनत होगी, 10% लक होता है. तो मैं चाहती हूँ आप बहुत मेहनत करें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं. 26 से 7-5 परीक्षाएँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप पहले अपने हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखें, साथ में आर्ट्स वर्क करें. मैं छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, उसके माध्यम से आपको समझा दूँ कि मेहनत कितनी ज़रूरी है. कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन के तीर सा सच, मरुस्थल से भी जल निकलेगा. मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा. ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा. जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरज से समुंदर से मेरी गंगा जल निकलेगा. कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा. तो अल्टीमेट ये है, यू डू हार्ड वर्क, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी एंड डू वेल. हम सभी शिक्षक साथियों की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. Morning. I'm Anushka Shroff from class 12A, and he is my co-host. Here Bhatia from 12th grade. And we are standing here in front of you all as your host for this memorable event. जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारी क्लास में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि लेट लकीर, जिनकी लाइफ बस 5 मिनट आने में ही टिकी होती है, या नेताजी, जिनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, और कई सारे. बट ये हमारी मेमोरी बन जाते हैं. तो आज हम इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स को याद करेंगे. तो हमारा फर्स्ट टाइटल है पढ़ाकू. ये तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं. कोई गैस करना चाहेगा इनमें से इनको किसको टाइटल मिलने वाला है? तो ये जाता है अमित तिवारी एंड जानवी सोलंकी.
खिलाड़ी। कोई गेस करना चाहेगा? वरुण सिंह एंड टिप्स देवलिया। ये लोग गेम्स वाले दिन पहले ही पीरियड में टीम बना लेते। तो हमारा नेक्स्ट टाइटल है कलाकार। बायो का सब्जेक्ट हो या फिर कोई और सब्जेक्ट, सारे डायग्राम हम इनसे ही बनवाते हैं क्योंकि इनकी ड्राइंग अच्छी होती है ना। यानी कैसे करना चाहिए कोई कौन होगा इसमें कलाकार? एक गेस तो राइट निकला है, बॉय या गर्ल, दूसरी बॉय होगी या गर्ल? ना यू राइट राइट। तो ये टाइटल जाता है मन शर्मा एंड खुशी गुप्ता को। और अब इन्फ्लुएंसर। सारे ट्रेंड्स टीवी से स्टार्ट हुए। कोई गेस करना चाहेगा? ये जाता है आद्रिका एंड सौमिल। क्लास का तारा, इनके बिना तो क्लास ही अधूरी है। ये ना आए ना तो हमें खुद भी आने को मन नहीं करता। इसमें भी गैस कर लीजिए कौन होगा। ओके, एक गैस तो राइट निकला है। तो ये जाता है जील पटेल एंड करण राठौड़ को। अगला नेताजी, इनके बारे में कुछ ना बोलना ही ठीक है। कौन हो सकता है ये? हिमांशु एसके एंड तनिषा मिश्रा। विशा। और आखिर में सबसे लेट लगी। कोई गैस करना चाहे तो आपने तो सोच भी लिया होगा सबने। तो ये जाता है ईशान रैना एंड जैमिन राठौड़। इनका तो बस एक ही रिकॉर्ड है, हमेशा लेट आने का और सारे प्लान कैंसिल करने का। तो इतने अलग होने के बावजूद भी ये सब एक साथ है और ये बहुत बड़ी बात है। Imagine 4 years later, when you look back at this moment and reminisce the past, the good memories and all those people who were in your life a few years ago. और इसी के साथ हम अपना इवेंट खत्म करते हैं and we would like to call Jia and Janvi to continue. Thank you. Thank you so much, Divya. Now I request Divya to come forward. I just felt to share my experiences, so here I go. I don't know where to end and where to start, but for the collection of life, it's going to be the biggest part. From saying things for the first day to now saying it for the last, I never realized that it went this fast. But anyways, I think we had a blast. Those pen fights, Damsharans, Audis, and some of the recently added new. I think it wasn't a typical journey, but together and happier, we just grew. I won't lie that we always obeyed, but you teachers have been our all-time shade. Getting scoldings to pads, your job still remains the unpaid. What we are now is probably what you made. We'll surely miss the school, the teachers, the vibe. But there's someone who will go a lot more quieter, a lot more sad. I mean, don't be emotional. I was talking about the corridors, where we ran and yelled like we are absolutely mad. I think I've been in a wildlife sanctuary rather than a class, because being wild is our hobby, right? What? I'm not offending you people. It's just biology. Humans are. Something starts to be ended, so that ain't something that we can mend. But exaggerating things and being sad, I choose thinking it ever happened. Let's be glad. Having gratitude and pride all over for the teachers and the school, I wish you all much luck and happiness, because the world is in the front, yet to do. Thank you. स्टेज पे या फिर स्टेज पे लेकिन आज भी उतना ही डर लगता है जितना पहली बार लगा था। अजीब है
ऊपर से आज हिंदी में बोल रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ आप सब मुझे सुने, क्योंकि आज भी इंग्लिश में बोलती तो वो टिपिकल स्पीच हो जाती ना। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, क्लासमेट्स नहीं, क्योंकि सब फ्रेंड्स हैं। और ये मेरा शायद इस स्कूल में आखिरी इंट्रोडक्शन था। जब कोई बोलता था स्कूल जाके क्या कर लेंगे अब, मेरा तो यही मानना है कि स्कूल जाके तो सब कुछ होता है। जो चीज़ें हमने यहाँ सीखी मुमकिन ही नहीं है कहीं और सीख पाते। और जब तुम्हारी एनर्जी को मैच करने वाला कोई तुम्हारी तरह थोड़ा पागल सा दोस्त मिल जाए, सर पे उठा लो पूरी क्लास को। दोस्तों की बात किए बिना स्कूल लाइफ का चैप्टर मानो अधूरा है। और मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी रही होगी, क्योंकि जिन लोगों से मैं स्कूल के पहले दिन 2010 में मिली थी, आज भी वो मेरे सामने बैठे और मुझे सुन के हंस भी रहे होंगे। कुछ लोग से बाद में मिली जो उतने ही खास बन गए। स्कूल तो मैं कुछ टीचर्स की वजह से भी आती थी, क्योंकि उनकी क्लास को मिस करके मुझे घूमने जाना भी नहीं लगता था अच्छा। टीचर्स भी बहुत ही अच्छे मिले थे हमें, जिनसे नई चीज़ें सीखना मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि लोगों ने मुझे टीचर्स पेट, ये टीचर की बेटी, वो टीचर की पेट, ऐसे नाम भी दे दिए थे। पर मुझे इन नामों से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझ में उतना विश्वास दिखाया था, इतने एफर्ट्स डाले थे और कंसर्न तो हमेशा से थे। पढ़ाकू, टॉपर, स्कूल कैप्टन सुन के मैं क्या तू भी बोल देती थी, लेकिन सच कहूँ तो सुन के अच्छा भी लगता था। एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। इन कॉरिडोर्स में, इन क्लासरूम्स में 12 साल कैसे निकल गए बिल्कुल पता चला, क्योंकि एक एक पल खुशी से बिताया है यहाँ पे। बहुत एंजॉय किया मैंने अपनी स्कूल लाइफ को, सच्ची में। म्यूजिक, स्पोर्ट्स से लेके एकेडमिक्स तक वो सब कुछ कर लिया जिसे मैं सालों बाद याद करके प्राउड फील करूँगी। और उतने ही प्राउड से बोलूँगी कि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ KVONGC चांदखेड़ा। एक बहुत बड़ा, ब्लैक होल जितना बड़ा थैंक यू उन सभी शरारती दोस्तों और रिस्पेक्टेड टीचर्स को, जिन्होंने मेरी स्कूल लाइफ को इतना स्पेशल बना दिया। आई विल मिस यू ऑल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। To wanting to attend them one more time, happy days came to an end. First of all, none other than starting with teacher. There are no goodbyes for us. Wherever I will go, wherever you are, you will always be in my heart, in our heart. And especially to my special ones, this is forever. A big thank you from the bottom of my heart to you teachers. Thank you for being our support system. And thank you for being our second parent. We will miss you and I mean it. I thought controlling our laughter in the class full of pin drop silence was the most challenging thing to do. Little did I realize that controlling our tears on the last day of our school would be million times harder. Thank you. Who else can guide you better as the now principal, sir? Sir, may I now request you to come on the stage? Respected principal sir, teachers, seniors and all my dear friends. It gives me an immense pleasure to all deliver the vote of thanks for this event to all present here. I would like to thank our principal sir, teachers, seniors and friends for making this function as a grand success. At last, I would like to give my thanks to each and everyone assembled here and have helped directly or indirectly to make this function possible within limited time. Thank you. Present a vote of thanks. Miss the time spent here and the people you left behind. Dear seniors, with this, we convey the best of our wishes to you all. May you shine, glorify, reach, and great higher. This is Jia Gautam and This is Janvi Padya. your host of the day signing off. Thank you all. Have a wonderful day. केवल पेड़ा नहीं बल्कि मिठाई का पूरा पैकेट लेके आए और हम सब खाकर उसको ढेर सारा आपको फिर से आशीर्वाद दें। थैंक यू। आप बांटोगे शुरू करोगे
मुंह मीठा किए बिना नहीं होता। हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे प्राचार्य महोदय की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्वीट्स खा करके ही जाइए। थैंक यू। Good morning to all. Respected principal sir, teachers, my dear juniors, and all my mischievous mates. I will get any questions in my life to thank all our teachers and express my gratitude. I take this opportunity to thank you from my heart to always believe in us through all the ups and downs we created for you and never give up on us. Thank you, teachers. How could I not thank my counterparts who lived with me through the thick and thin for the last dozen years? I owe you our friendship for life. It goes unsaid that I have had the most enjoyable and memorable days with you. I am sure KVULDC will always be a precious treasure, making us the better citizens of the society. I would like to dedicate a few lines just for you. Studying and playing with you guys was always a treat. I don't know if we may not, but definitely will meet. You taught me the value of friendship true. Only thing I can say is a wholehearted thank you. Thank you all. Isham Bhaiya to share his song. दोस्तों के लिए कुछ शायरी अर्ज करना चाहूँगा। दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पे फिदा नहीं होते। मोहब्बत से बढ़कर तो दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। तो अब दोस्तों के लिए दो पंक्तियाँ गाना चाहूँगा। लोगों को आते हैं दो नजर, हम अगर समझो तो नहीं। मैं खुदाया को आते हैं दो नजर, हम अगर समझो तो नहीं। हो जुदाया खफा है खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, ओ मरना जीना साथ है। ओ खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। All girls for the session ceremony. Seniors,
who have made us all proud. Now, I call upon Vedant on stage to present Sachet. This perfect goes to Devyadi. अरे गौर से कराना वहाँ पे थोड़ा आगे हो ना। तो आगे आ जाओ। Most respected principal sir, class teachers of outgoing 12th A and 12th B, class teachers of current 12th A and 12th B, my colleagues and dearest students. इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि क्लास 12 के बच्चे क्लास 12 के बच्चों को फेयरवेल दे रहे हैं। शायद ये भविष्य में नहीं होगा, तो ये आप सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आप 12th क्लास वाले बच्चे 12th क्लास को फेयरवेल दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं क्लास टीचर्स ऑफ करंट 12th A 12th B और सभी बच्चों को खास तौर से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही शानदार इस कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बार ताली बजाकर हम सबका अभिवादन करें। मैं अब तक के सारे फेयरवेल्स में कुछ बातें कॉमन बोलता हूँ। सबसे पहली कॉमन बात कि जो भी फेयरवेल लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। स्कूल सिस्टम में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आज दोपहर के बाद से आप एक अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारा संघर्ष करना है, बहुत सारे लाइनों में लगना है। मैं बहुत सारी बार कहता हूँ कि जब हम कभी 10th 12th में होते होंगे तो हमको कोई एप्लीकेशन के लिए जाना होता तो हम उसी कॉलेज में जाते, 5-50 बच्चे और मिलते, लाइन में खड़े होते, एप्लीकेशन कराते, काम हुआ। एंड सी नाउ दिस नंबर इज इन मिलियंस। अगर नीट आपने एप्लीकेशन भरा होगा, इस बार कोई 16 लाख बच्चे देने वाले हैं, तो आप देख लीजिए लाइनें बहुत बड़ी है। और जब मैं यहाँ से पास आउट हमारे कॉलेज के बच्चों से बात करता हूँ तो बोलते हैं साहब स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ थी, कॉलेज लाइफ में कहीं पर किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है। आउट मीन्स आउट, इन मीन्स इन। तो आप सब इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, आपके भविष्य के लिए बहुत ही काम आएगा। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, अक्सर हम साथियों में ये बात कहती रहती है, केंद्रीय विद्यालय ONGC चांदखेड़ा,
इसका एकेडमिक्स में बहुत बड़ा है। जब मैं बात करता हूँ, इस स्कूल में मैं 2011 से आया था और 2021 तक कोई ऐसा साल नहीं गया जब इस स्कूल से कोई बच्चा IIT में नहीं गया है या किसी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं गया। मैं आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आप इस रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे और मुझे पक्का मालूम है कि आप सब इस रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे। आप बहुत अच्छी पढ़ाई की। अब मैं महंती मैडम, HM मैडम ने जो एक बात की थी वहां से अपनी बात कहना चाहूंगा। उन्होंने शायद कुछ कहा था कि कोई एक सब्जेक्ट तो कमजोर होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है आज दिन तक, मैं तो कहता हूं किताब नहीं खोलिए, टेंशन मत करिए, बिल्कुल टेंशन मत करिए। लेकिन आज घर जाकर के किताब जरूर खोल लीजिएगा। आपके पास में 7 मई को केमिस्ट्री, 20 मई को फिजिक्स है और आई थिंक 2 और 3 जून, नो 7 जून को आपके पास मैथमेटिक्स है। आप देख लीजिए, आपके पास पढ़ाई के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। आप किस तरीके से बहुत अच्छे से उसको प्लान आउट करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। आप अभी भी बिल्कुल समय नहीं गया है क्योंकि बड़ी मुश्किल से 6 to 7 लेसन सब्जेक्ट के हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं, स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। अगली बात पे मैं आना चाहूंगा। इस बार आपका जो सेंटर है वो ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल गोदरेज गार्डन सिटी है। मैं इसलिए इस शब्द को बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल और है। अगर गलती से आप दूसरी वाली ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल पे चले गए तो उस सब्जेक्ट का पेपर देने का मौका आपको अगस्त में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। उस बात को नोट कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर फ्रेशर्स सेरेमनी था, उसमें कोई लेट लतीफ वाला इशू आया था। एक बात बता रहा हूं, 10:01 आपको अंदर एंट्री नहीं। आपका एक होम टेस्ट था, उसमें अलाउ कर दिया हो, उस बहाने पे मत रखिएगा। ऐसा भी हुआ था कि प्रैक्टिकल्स में हमने आपको घर से भी बुलाया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपके एडमिट कार्ड कल मिलने हैं, हमने क्लास टीचर्स को बिल्कुल क्लियरली बता करके रखा हुआ है। उस एडमिट कार्ड पे आपके और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने ही होने चाहिए। आप लोगों को माय colleagues, junior 12th class, senior 12th class, all the students, all the dear students of outgoing 12th class. पाटीदार सर ने भी कहा कि ये पहला मौका है जब फेयरवेल लेने वाला भी क्लास 12th का बच्चा है और देने वाला भी क्लास 12th का बच्चा है। और ये पहली बार है जब 12th क्लास को पढ़ने के लिए पूरे 13 मंथ्स मिले हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और अभी पाटीदार सर ने कहा कि हमारे विद्यालय से बहुत सारे बच्चे मेडिकल्स में जाते हैं, IITs में जाते हैं। तो जब हमें ज़्यादा समय मिला है तो डेफिनेटली इस बार हमारे बच्चों का नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है या कभी उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि आपकी तैयारी अच्छी तरह चल रही है। लेकिन ज़्यादा समय मिलने से लेजीनेस नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जो स्कूल की यादें हैं उन यादों को हमारे सभी टीचर्स ने रिकॉल करा दिया है। HM मैडम ने जो रेडीनेस प्रोग्राम से लेकर के पाटीदार सर तक, जिन्होंने आपको CBSE के एग्ज़ाम देने के लिए जाने तक की पूरी तैयारी, यानी कि पिछले 12 सालों में आपने जो किया है और आगे जो करना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो बच्चों, अब
थोड़ा सा मैथ्स के बारे में बोल दूँ मैं, क्योंकि मैथ्स की जो एग्ज़ाम होती है, ऑफ कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री की भी उतनी ही मुश्किल एग्ज़ाम होती है। जब पेपर में कहीं पर कोई भी डिस्कशन होता है तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट के बारे में कहीं पर कोई डिस्कशन हमेशा देखने को मिलता है कि पेपर ऐसा था, या पेपर टफ था, या पेपर लेंदी था, है ना। ये वाली बातें इन 3 सब्जेक्ट में जनरली मिलती है, बाकी सब्जेक्ट में भी होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप हिंदी इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मार्कशीट तो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मार्कशीट को अच्छा करने के लिए सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना है। लेकिन मैथ्स के पेपर में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम दी है 11th क्लास में, अब आपको ऑफलाइन देना है। ऑफलाइन और सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। ये बेटा लिखने की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं ग्रुप पर देखती रहती हूँ कि सभी टीचर्स ने बहुत सारे पेपर्स आपके पास भेजे हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। समय लगा लीजिए, घड़ी लगा करके आप देखिए कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऑलवेज यू आर वेलकम टू द स्कूल। अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तो फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का, है ना। जल्दी से फ़ोन उठाया, लगा दिया मैडम से या सर से बात कर ली और अपने डाउट को क्लियर कर दिया। लेकिन बिल्कुल इस बात की कोताही नहीं बरतना है कि ठीक है छोड़ देंगे, ये वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, नॉट ओनली इन मैथ्स। ठीक है, सब लोग ने मेरी बात मैथ्स के लिए समझ ली, क्योंकि but anyway that is come to become a reality. And your batch, as all the teachers have said, this batch is a special batch because I remember your 10th standard. When you completed the 10th standard, the pandemic started, and along with the 11th standard, the classes were going on in the online mode, and at the end of the session, it has turned out to be in the offline mode, and we were lucky that we were able to see our students. And at the beginning of 1st standard also, I have seen most of the classes were in online mode, and at the end of the time, again it has turned out to be in the real classroom. And you are lucky that you got this farewell also. So only one thing I want to tell you, because you will grow to become young men and young women. And we will be, as teachers, we will grow to become older people. So there are chances that we will forget some of your faces. Otherwise, sometimes we will not be able to recognize some of you. Now also, when I am looking at my own children, means the B section students, when you have removed the mask, I was not able to recognize some of you. So this is the condition. After a long time, what will happen? So just one request to all of you, whenever you are meeting us anywhere in the life, just come to us, wish us, and just a question, how are you ma'am or how are you sir? That will make our life. Understand, this is very much important for a teacher. And another thing that I want to tell you is that, a little type of an advice only, never look back in life. Today also, today most of you have turned out to be a little bit emotional, but all these things are part of our life. Because you have to complete the school and you have to go to the wonderful institution of the campus life. And don't look at the corridors, don't stare at the corridors of the school. That corridor will be there always. Okay, it will be there always, and you have to come back to the school. How will you come back to the school? After becoming a successful person in the life. Okay, so you have to achieve success and come back to us as successful person in the life to tell us your success stories. We require that from you. And on behalf of the school, I wish all the good luck and the great success in the coming examination. And there is a mantra for success also. You have to take it, because now the days are very limited. And this is my advice for you for becoming successful people in the life. Not only in the coming examination, in the life also. Life also, you should turn out to be successful. So you have to take a single task. You have to be task oriented, because so many things are there that will be distracting you. So as far as the examination is concerned, you have to take up a single task, and it should fill your
praying, it should fill your heart, it should fill your entire body. So this is the mantra for success. Thank you. पोस्टिंग जो कह दो, वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वाली जो टोपी है वो सिर पे आती गई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनना, वो बोलते थे, तब मुझे लगता था कि पापा खुद अफसर है, लेकिन लगता है कि हम बनेंगे तो उनको पता नहीं क्यों कहते हैं। ये बात मैं जब तक बायो का टीचर था, साबरमती, CRPF, गांधीनगर कैंट, जलीपा कैंट, भुज कैंट, अलग अलग स्कूलों में बहुत जगह में PGT बायो रहा, तब तक नहीं समझ में आया। Once I changed my role, I understood that point that why you should not become head of institute, because your turn come in the end. आपको सबसे लास्ट में बोलने को बुलाया जाता है। अभी मेरा नाम क्या अशोक है, A से नाम था, हम स्कूल में गए सबसे पहले, अब साइंस का मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट था, सबसे पहले वाइवा किसका, अशोक राठी का। अशोक राठी पढ़ने में बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, अपने को नंबर मिल गए, बाकी की रोटियां डुबा दी, ठीक है, बढ़िया था। BSc में ये हुआ, MSc में ये हुआ, B.Ed में ये हुआ, अशोक नाम का हमेशा फायदा मिला अपने को। तो अब क्या हो गया कि अब सबसे लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, मेरी बहुत सारी बातें थी, अब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे से पहले वाले आके बोल रहे हैं। अब बोलूंगा तो आप सबको लगेगा देखो कैसा प्रिंसिपल आया है स्कूल में जो खुद ही चीटिंग कर रहा है, दूसरों के पॉइंट उठा उठा के बोल रहा है ना। एनीवे, दिस इज जस्ट टू हैव अ लाइटर एनवायरनमेंट। I wish each one of you become head of institute, head of department, head of any organization, and we will feel very much proud of you. ठीक है, ये तो एक मजाक की बात थी कि ऐसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरी दिली इच्छा है। पाटीदार जी ने जो बहुत सारी बातें बताई CBSE की, मैं एक एक करके बताता हूँ। उसमें एक लाइन मेरे को लगता है या तो मेरे सुनने में कमी रही या पाटीदार जी बताते बताते स्किप कर गए। मैं एज ए टीचर हमेशा बच्चों को कहता था, बेटा सैटरडे को कॉपी सबमिट होनी है ना, यू कैन बी एब्सेंट बट योर नोटबुक शुड नॉट बी एब्सेंट दैट डे, यू एंश्योर दैट योर फ्रेंड विल बी सबमिटिंग दैट कॉपी, ओके। लाइकवाइज जब भी मैं एज ए टीचर बोला या एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, मैं एक चीज कहूँगा, बेटा आप जाओ ना जाओ, आपका एडमिट कार्ड पहले पहुँच जाना चाहिए वहाँ पर। आप पहुँचो ना पहुँचो, आपका एडमिट कार्ड उस प्राइवेट स्कूल में जहाँ आपका सेंटर आया है, आपका एडमिट कार्ड डेफिनेटली वहाँ पहुँचना चाहिए। कारण यह है बेटा कि हमारा सेंटर सुपरिटेंडेंट का भी मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वर का भी है, डेप्यूटी CS का भी है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे या तो लेट हो जाते हैं या अनफॉर्चुनेटली बच्चे उस आपाधापी में सुबह में बाकी सब चीजें लेके आ गए और एडमिट कार्ड लेके नहीं आए। अब बेटा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हेड ऑफ वो सामने वाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, KV to KV होता है, नो इश्यू, बट अब सामने वाले आपको कितना कोऑपरेट करेंगे और उस टाइम आपका जो माइंड बिल्कुल वैक्यूम में जाएगा, जो ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, आई नो इन द एंड यू विल बी एबल टू राइट द एग्जाम इफ यू आर नॉट कैरिंग एडमिट कार्ड ड्यू टू वन और अदर रीजन। 99.9% क्या होगा, वो लोग हमको फोन करेंगे, हमसे आपकी सॉफ्ट कॉपी मांगेंगे, प्रिंट लेंगे, आपको हमसे वेरीफाई करवाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उस होने की प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाएगा बेटा, आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा, यू विल बी स्ट्रेस, यू विल बी ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अलोंग विद ऑल अदर इंस्ट्रक्शन व्हिच आर ऑलरेडी गिवन बाय पाटीदार सर, टेक वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड आल्सो। आप बेटा अगले दिन के पेपर की तैयारी जब भी करते हैं, अपना यूनिफॉर्म, अपने कपड़े लत्ते, शू वगैरह जो कुछ रख रहे हैं, उसके साथ में एक चीज कंपल्सरी रखिएगा, दैट इज योर एडमिट कार्ड, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, नंबर 1। And second thing, as sir has rightly told, right now मैं सीमा सुरोलिया मैडम को शेयर कर रहा था, हम साथ में काम किए हैं काफ़ी अर्सा, तो मैडम ने देखा है आई वाज CS, एक बच्चा आधा घंटा लेट हुआ, मेरे को दिल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कई बार आपको क्या होता है कि आप इमोशनली जो सोचते हैं ना, वो चीज़ें आपको ऑन पेपर या रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो आपको सपोर्ट नहीं करती, आपकी इच्छा आप चाहें भी तो इम्पोज नहीं कर पाते बेटा। एक बच्चे को 10th में अपीयर करने से खुद मैंने रोका हुआ है एज अ CS, यू वॉन्ट बिलीव। आई गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम एवरीबडी पॉसिबल इन एजुकेशन फील्ड ऑफ अहमदाबाद, बट इवन दो आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज वी हैड अ वन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम इज देयर नाउअडेज। वंस एंट्री इज देयर, अटेंडेंस मेरे पास आई, मैं काम बहुत फास्ट करता हूँ, हमने इंस्टेंट मार्क कर दिया बच्चे को एब्सेंट। अब उस एब्सेंट को प्रेजेंट करने का रिवर्ट कोई सिस्टम ही नहीं है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही चीज आप जब JEE पे जाते हैं वहां आपको फेस करनी है, यही चीज आप जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे बेटा वहां फेस करेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर में आए दिन देखते हैं
अलग अलग जगह ऐसा सीन होता है कि बच्चों को 3 बच्चों को पहुंचने नहीं दिया, 2 बच्चों को अंदर एंटर नहीं दिया सेंटर वालों ने। आप सोचिए हमारा पूरा 1 साल, हमारे बहुत सारे सपने एक साथ में क्या हो जाते हैं, वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। होता है बेटा ऐसा। सो आप लोग टाइम की जरूर कदर करिए। लेट लतीफ, मेरे ऊपर भी ये टाइटल पूरी मेरी लाइफ रहा, लेट लतीफ।